Good evening, dear student. Let's start today's class. And today we will discuss the rest chemical properties of aldehyde and ketone. And up to now, we have already completed our discussion that like Carney-Jarros reaction, aldol condensation, and your iodoform reaction. And also we have discussed about the filling test and tolerance test. So these are the things we have already discussed. So right now we will discuss about the reduction of aldehyde and ketone. This is our topic. Reduction of aldehyde and ketone. माने aldehyde और ketone को जब हम reduction करीबा तब कौन मिलेगा? That we are going to discuss right now. So this is our today's topic. So reduction of aldehyde and ketone. First of all, before going to any reaction, let me give you one fundamental point about this carbonyl group. When this carbonyl group will undergo reduction, जितेबेले carbonyl group रो reduction हबो, it may give two type of product. One, you can think there will be reduction of one pi bond. गोटे pi bond रो reduction हबो. First of all, you should be clear that reduction means addition of hydrogen. Reduction रो अर्थ होची addition of hydrogen. And this hydrogen you may add it in the nascent hydrogen form or in the molecular hydrogen form. So whatever the carbonyl group it is, if we will add hydrogen to this, then it may give two type of product. How it will be? If one pi bond is break, যদি গোটে pi bond break হবো তাহলে দুই atom রে গোটে গোটে hydrogen add হবো. So this is the product you can get. মানে এই কার্বন রে গোটে hydrogen add হলা, গোটে pi bond break ହେଇଛି যেহেতু ଆଉ এই oxygen রে গোটে hydrogen add হবো. So basically ଯେତେବେଳେ carbonyl group ର reduction ହେଲା, when one pi bond is break, it is forming alcohol. ସିଏ alcohol ଦେଉଛି বা alcohol ସେଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି. ठीक सेमती आउ गोटे भी रिडक्शन प्रोडक्ट आसी परिबो when both the bond will be break बा पूरा ए बॉन्ड टा भांगी जिवो. जदि ए बॉन्ड पूरा भांगी जाए ताले केतोटे लेखन हाइड्रोजन ऐड हबो? 82 दुटा हाइड्रोजन ऐड हबो because two bonds are break and two bonds are break for this oxygen, so two hydrogen will be added to this oxygen also. So what will be the product you will have? Bond C. Since two bonds are break, CH2, and this bond will remain as such plus H2. So this is, you can say, complete reduction of carbonyl functional group. You can say this is partial reduction of carbonyl functional group. And in this case you are getting alcohol, and in this case basically here two hydrogen are added and here four hydrogen are added, and you are getting hydrocarbon. So these are the two possible reduction product of any carbonyl functional group. कौनसी भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप रो एटा होची दीटा possible reduction product. These are two possible reduction product of any carbonyl functional group. Now you will say or you will ask, sir, when there will be alcohol and when there will be hydrocarbon? को केस रे अल्कोहल बाहरिबो, को केस रे हाइड्रोकार्बन बाहरिबो, ये का ऊपर डिपेंड करिवो? It depends upon the reducing agent you have used. तमे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करिछ सी डिसाइड करिवो जे अल्कोहल तयारी हेबो ना हाइड्रोकार्बन तयारी हेबो. किंतु रिएक्शन रो कांसेप्ट ता बुझी गलो. सो अल्कोहल विल फॉर्म और हाइड्रोकार्बन विल फॉर्म. दिस इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट वी हैव यूज्ड. जस्ट लाइक एग्जांपल, जदि हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करिबा किंबा सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करिबा किंबा कोनोसी भी गैस को यदि मेटल प्रेजेंस रे पास करिबा, हाइड्रोजन गैस पर्टिकुलरली निकेल पैलाडियम और प्लैटिनम सिंथी एसएन एचसीएल यदि हमें देबा, इन ऑल सोडियम अल्कोहल यदि हमें देबा, ए सब रिड्यूसिंग एजेंट विषय तुम सुनिथिबो. इन ऑल दिस केस you will get alcohol. तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट यदि यूज करूछ जे कोनसी आउरी एटसेट्रा हम लेकुची, this reducing agent they will reduce the carbonyl functional group into alcohol, and there are some specific reducing agent just like ZnHg concentrated HCl. ZnHg concentrated HCl. When this reagent is used
or this reducing agent is used, reducing agent I will say, when ZnHg concentrated HCl reducing agent is used, in that case you will get hydrocarbon. मन रख ए reducing agent जदि दिया हेची ताहे तुम हाइड्रोकार्बन पाइबो. ठीक सेमती हाइड्रोजन KOH और ग्लाइकॉल इट इज सॉल्वेंट आकार काम करिवो. हाइड्रोजन KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल हम लिखि परबा. इथिलीन ग्लाइकॉल जदि दिया हेची ताले सेही केस रे भी तमे हाइड्रोकार्बन पाइबो. तो तुम रिएजेंट जदि जानि छ ताले रिएक्शन आराम से लिखि परिबो. और मन रखो जिते बेले Zn और G कंसंट्रेटेड HCl रिएजेंट यूज करा गला सेही रिडक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन कहा जाए, जोटा कि तुम सिलेबस रे थिला. दैट रिडक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन. मन रखो ZnHg कंसंट्रेटेड HCl जदि यूज करा गला ताहले सेही रिडक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन कहा जाए. ठीक सेमती जदि हाइड्रोजन हाइड्रेट और हाइड्रोजन एंड KOH एंड ग्लाइकोल जदि यूज इथिलीन ग्लाइकोल जदि यूज करा हेची सेही रिडक्शन को वुल्फ-किस्नर रिडक्शन कहा जाए. दैट रिडक्शन इज कॉल्ड वुल्फ-किस्नर रिडक्शन. मु कहिबी सब रिएक्शन हम देखिबा. प्रथम एति कांसेप्ट हमर क्लियर हे. क्लीमेंसन रिडक्शन रे कोन होची? क्लीमेंसन रिडक्शन रे हमें ZnHg कंसंट्रेटेड HCl यूज करूछु. वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रे हमें कोन यूज करूछु? वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रे हमें हाइड्रोजन KOH और ग्लाइकोल यूज करूछु. गॉट माय पॉइंट. इथिलीन ग्लाइकोल हम यूज करूछु. सो ये रिएजेंट रो नेचर को नेकी प्रोडक्ट डिसाइड हबो. सो इट इज स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट बाय रिएक्शन और ना भी अलग हेजो. तो मैं कहबो सर एसो यूज करे ना किछि हबो कि तो देयर इज नो स्पेसिफिक नेम फॉर ऑल दिस रिएजेंट. ए सब रिएजेंट मान को पाए स्पेसिफिक नाम नेम यूज करा है नहीं, जोटा कि तुम सिलेबस रे बिच नाही. ए सब रिएजेंट के यूज करिकरी पर्टिकुलरली नेम रिएक्शन क्वेश्चन आसीबो. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सपोज मते क्वेश्चन दे देला हाउ एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ concentrated ZnHg concentrated HCl. एसिटाल्डिहाइड ZnHg concentrated HCl सहित केमिति रिएक्शन करिवो. हाउ कैन आई राइट दिस रिएक्शन? देखो बहुत सहज है. एसिटाल्डिहाइड रो कोन दे क्वेश्चन रे एटा एग्जांपल डायरेक्ट लिखले चलिवो. सो एसिटाल्डिहाइड रो कोन दे रिड्यूसिंग एजेंट? मो रिड्यूसिंग एजेंट देछि ZnHg concentrated HCl. Now what will be the product? You have the concept. प्रथम आगु कुआ हेछि जे ZnHg कंसंट्रेटेड HCl जदि लागिवो ताले सेही केस रे हाइड्रोकार्बन बाहरिवो. तो को टेक्निक अप्लाई हेबो? बोथ पायर बॉन्ड विल बी ब्रेक. उभय पायर बॉन्ड जदि ब्रेक हिजिवे ताले दुटा हाइड्रोजन एक कार्बन ऐड हिजिवो. ताले बाहरला कोन CH3 बॉन्ड ए CH रे आउ दुटा हाइड्रोजन ऐड हला CH3 प्लस H2O. सो यू गॉट इथेन. टोटल केतेटा हाइड्रोजन ऐड हला? 4 हाइड्रोजन. So this is called Clemmenson reduction. This is an example of Clemmenson reduction. This reaction you can say this is Clemmenson's reduction. A reaction को बा A reaction को हमें Clemmenson reduction कही पारिबा. This reaction is called Clemmenson reduction. बुझी पारलो? ठीक सेमती कीटोन भी एक बार भी करि पारिबो. If you will take ketone also you will get the same product. तमे कोन से कीटोन भी यदि पाइ नबो ताहले भी तबे सेही प्रोडक्ट ही पाइबो. 4 नेशन हाइड्रोजन ऐड हबो एंड ZnHg concentrated HCl हबो. बोथ पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक, means this two bond will break. So CH3 CH2 CH3 you get plus water. CH3 CH2 CH3 plus water. So you are getting here propane. तमे ए जगह रे propane पाउछो. थ्योरी आराम से लिखे हुआ. थ्योरी कौन लिखे हुआ? एसिटाल्डिहाइड reacts with or undergo reduction with ZnHg concentrated HCl to give ethane. A compound ना करो, A compound ना है ethane. And this reaction is called Clemmenson reduction. बुझियला समस्तन करो? क्लियर हलो समस्ते? This reaction is called Clemmenson reduction. क्लियर हे गेलो? ठीक सेमती जदि वुल्फ-किस्नर पचारे if you are asked वुल्फ-किस्नर reduction तारे सेतरे बेसिक किछि चेंज हेबा नाही. If you are asked Wolff-Kishner reduction कि सब समान रहिबो केवल रिएजेंट चेंज हेजिवो. Only the reducing agent will change. Reducing agent की कोन हेजिवो? हाइड्रोजन KOH and ethylene glycol.
So this will be glycol. Ethyl glycol का structure भी जानने के चाहिए CH2OH CH2OH. This is called ethylene glycol. ठीक सेमती जागारे भी सी समान रिएजेंट रहिबो डू लेखि दुछि. एबे एई रिएक्शन को कहला Wolff-Fishner रिडक्शन. तो रिएक्शन रो नेम केमती चेंज हला बुझी पालो. जदि हमें ZnHg concentrated HCl जदि हमें रखुचे, then in that case you will have बस सेही केस रे तुमको कोन मिलिबो, सेही केस रे तुमको सेही अल्केन मिलिबो. ठीक सेमती हमें जदि हाइड्रोजन हाइड्रेट ऑफ KOH इथिलीन ग्लाइकॉल नबा ताहाले भी सी हाइड्रोकार्बन ही बाहरिबो. गॉट माय पॉइंट? ऑल क्लियर ऑन दिस? ऑल क्लियर ऑन दिस? तो Wolff-Fishner रिडक्शन आ Clemmensen रिडक्शन बुझी गला. एबे हम केतेटा एग्जांपल अल्कोहल रो भी करि दो. लेट्स गिव सम एग्जांपल ऑफ अल्कोहल. हमें किछि अल्कोहल रो भी एग्जांपल लेबे कर दबा अल्कोहल रो रिडक्शन. लेट्स डू CH3COOH. Suppose in this case you are given LiAlH4 lithium aluminum hydride हमको दिया हिची. मु कहितली एई रिएजेंट जदी यूज हिची ताले अल्कोहल प्रोड्यूस हो. तमारे ये प्रोडक्ट कोन बाहिबो. 2 hydrogen will be added here and 1 pi bond will break. गोटे pi bond break हबो और एठी गोटे हाइड्रोजन ऐड हो. तो प्रोडक्ट कोन हबो CH3 bond. CH सहित आ गोटे H ऐड हला. सो CH2 डबल बॉन्ड ता सिंगल बॉन्ड हिजो और O सहित आ गोटे हाइड्रोजन ऐड हबो. So you will get ethanol. Should you take answer? Acetaldehyde reacts with lithium aluminum hydride to give you ethanol. See ethanol देबो. ठीक सेमती आमे यदि एसीटोन भी नबा, if you will take acetone and you will take any one of these reagents, either तुम्हें LiAlH4 or NaBH4, any reagent you will take, or you can take H2Ni also. In H2Ni केस रे 2H न लिखिबो, H2 ऐड हला बोली लिखिबो. आ ए सब केस रे 2H ऐड हला बोली लिखिबो. मु कहितली यदि गैस पास करा हो ताले मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करके लिखिबो, आ यदि रिएजेंट पास करिवो ताले नेसेंट हाइड्रोजन लिखिबो. प्रोडक्ट कोन बाहिबो एठी CH3 CHOH CH3. Got it? So you will get that isopropyl alcohol or propane 2OH. तो एटा हला अल्कोहल पाई बुझी पाला समझते. ऑल क्लियर ऑन दिस? ऑल क्लियर ऑन दिस? एठी मु आ गुटे पॉइंट हाइलाइट करेली जे तमरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड भितरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट. सीए होची इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट. और सभी में को भी जानि पाइबो ए रिएक्शन में जानि पाइबो. यू विल सी इन दिस रिएक्शन इफ यू आर टेकिंग LiAlH4 and NaBH4, then you will get different type of product. केमते different type of product पाइबो देखो. जदि हमें NaBH4 ऐड करले ताले प्रोडक्ट कोन हबो. कांसेप्ट तो से हम अल्कोहल बाहरिबो. तो प्रोडक्ट कोन हबो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ही दिबो. एठी गोटे हाइड्रोजन ऐड हिबो और एठी गोटे हाइड्रोजन ऐड हिबो. तो CH2OH. So you will get this kind of alcohol. माने एठी केवल 8 C डबल बॉन्ड O ही रिडक्शन हेबो. There will be nothing happen to this pi bond. ई pi bond संगरे किछि हेबो नाही. किंतु तमे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करूछो किबा H2Ni जदि यूज करूछो सेही केस रे ई pi bond रो भी रिडक्शन हेबो. Because these are strong reducing agent. अभी टिके weaker reducing agent हिथिबारु से conjugated pi bond को रिडक्शन करि पारिबो नाही. से केवल C डबल बॉन्ड O को रिडक्शन करिवो. किंतु LiAlH4 किबा H2Ni जदि दिया हला से ई pi bond को भी रिडक्शन कर दबो. तार प्रोडक्ट कोन बाहिबो एटा CH3. If this pi bond will break, means one bond will break, this H becomes H2H2. Because गोटे pi bond break हला पर एठी गोटे हाइड्रोजन ऐड हबो, एठी गोटे हाइड्रोजन ऐड हबो. So CH2 bond CH2 and now it will become alcohol CH2OH. तो एठी पाइलो ब्यूटानॉल पाइलो. बुझी पाला समझते. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2Ni केस रे C डबल बॉन्ड O रो भी रिडक्शन हबो और कंजुगेटेड pi bond रो भी रिडक्शन हबो. कंजुगेटेड काहे नि कहूची बिकॉज़ इट इज इन रेजोनेंस विथ कार्बोनिल ग्रुप. किंतु सोडियम बोरोहाइड्राइड जदि दिया हिची केवल कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप रो रिडक्शन हबो. एटा समस्त मन रखिथिबो. ऑल क्लियर ऑन दिस? ए रिडक्शन को लेकी डिफिकल्ट क्वेश्चन आसले एतकी ही पचारि पारे किंबा तुम डायरेक्टली व्हाट इज Wolff-Fishner रिडक्शन एंड व्हाट इज योर Clemmensen रिडक्शन इनती क्वेश्चन भी डायरेक्टली पचारि पारिबो.
बुझी हला कि ऑल क्लियर ऑन दिस तापर एगे आमे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कथा पढिबा जोटा कि आमे बेंजाल रिएक्ट रे करूते इन द सिलेबस आमे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजाल रिएक्ट डिस्कशन करिबा चाहे से बेंजाल रिएक्ट हो कि बेंजोफेनॉल दो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली से बेंजाल रिएक्ट रही पचारिबो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माने से नाइट्रेशन भी हेबो रिड्यूस्ड अल्किनेशन भी हेबो सल्फोनेशन भी हेबो सब रिएक्शन को हम एठी प्रैक्टिस करि परिबा जस्ट स्टूडेंट हैज टू क्लियर केवल स्टूडेंट को जानिबा को पड़िबो जी ये गोटे की प्रकार रो रिएजेंट व्हाट काइंड ऑफ सॉरी व्हाट इज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ CHO ग्रुप इन बेंजीन हम कहि परिबो समझते CHO ग्रुप रो बेंजीन रे कोन हो तार डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस माने इलेक्ट्रोफाइल आसीबो से को पोजीशन को अटैक करिवो CHO is a meta directing group मन रखो this is a meta directing group कारण मतलब जदी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करिवो it will withdraw electron from the benzene ring और जेहेतु से withdraw करछि ताको deactivating group भी कहा जिवो so CHO is here deactivating and meta directing group माने ए काहे की meta directing हला तमे तार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करिवो तुम जानि पारिबो इजीली the why that is a meta directing group तो मैं देखिबो this bond will come to here this bond will come to here so you will do if you will do resonating structure like this then you will have positive charge at ortho position similarly if you will delocalize this pi electron then you will have positive charge on at ortho position ए ortho position रे positive charge आसीबो देखो ऑर्थो पोजीशन आसीबो और सॉरी पारा पोजीशन रे आसीबो माने ऑर्थो पारा पोजीशन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जेहेतु ऑर्थो पारा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हला पॉजिटिव चार्ज दिवा पई सो इलेक्ट्रोफाइल जितने आसीबो दैट विल डेफिनेटली कम टू द मेटा पोजीशन बिकॉज़ ऑर्थो पारा पोजीशन रे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होची सिंस एंड व्हाई दिस इज सो बिकॉज़ CHO इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू रिजोनेंस ये रिजोनेंस थ्रू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करिया है तो सेति पई इलेक्ट्रोफाइल जेतबे आसीबो से मेटा पोजीशन रे लागिबो इफ यू नो दिस देन दिस रिएक्शन इज वेरी इजी सो एटा हला बेंजाल रिएक्ट आ मते देछि एठी डिफरेंट रिएजेंट जहां भी दे पारे मैं जानि बोले जे मेटा पोजीशन रे लागिबो सपोज हमें एठी बेंजाल रिएक्ट रे दोछि Cl2 anhydrous KlCl3 मैं बुझै दिबे आगु दिस इज ए लुईस एसिड ये कैटालिस्ट आकर काम करिवो ए जो Cl2 आसीजी माने यार हाइड्रोजन को पोजीशन रो मेटा पोजीशन रिमेंबर मेटा पोजीशन रो हाइड्रोजन मेटा पोजीशन है बिकॉज़ इट मेटा डायरेक्टिव ग्रुप और यार गोटे Cl H और Cl पड़े जीवो HCl लिखी तो HCl will be lost or released as a byproduct and you will have the product like this CHO and Cl remember this is here electrophile Cl plus एठी इलेक्ट्रोफाइल है Cl plus Cl2 Cl3 बुझियाला ठीक सेमती जदि हम नाइट्रिक एसिड देछि माने HONO2 का प्रेजेंस रे देबो से H2SO4 प्रेजेंस रे देबो एही रिएक्शन पे कोन एडा को नाइट्रो ग्रुप आइबो किंती आगरे यार H और यार OH सेही मेटा पोजीशन रो तो एठी मेजर मानना बोली प्रश्न उठुनी तो H और OH लॉस हे गला वाटरिटी एंड व्हाट यू विल गेट प्रोडक्ट हियर सेही CH रहिबो और मेटा पोजीशन रे आसी कि NO2 ग्रुप लागिबो और यार ना ही वो मेटा क्लोरो बेंजाल डिहाइड और यार ना ही वो मेटा नाइट्रो बेंजाल डिहाइड यार ना ही वो मेटा नाइट्रो बेंजाल डिहाइड बुझी पालो समझते एति क्लियर हैला ठीक सेमते आहुरी भी तुमे जे करबा पई चाहिबो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नै जे करबा पई चाहिबो सेटा सल्फोनेशन हबो सल्फ्यूरिक एसिड दे HOSO3 लिखा जाए you write HOSO3H so in this case what will happen H and OH will loss and your CHO group will and CHO and sorry SO3H group will attach to here. So this is the compound you are getting because in all this case this is a meta directing group. ठीक सेमती तमे जदि एसिटोफेनॉल भी नेबो ताहले भी से समान हेबो बिकॉज़ एसिटोफेनॉल मध्य उटे ए जो COCH3 ग्रुप ये भी मेटा डायरेक्टिंग है ए सब रिएक्शन एक्जेक्टली सेम हेबो किछि चेंज हेबो नाही केवल तमे खाली लिखि दिबार अछि तो एटा ଗୋଟେ कीटोन नेली एटा ଗୋଟେ एल्डिहाइड नेली ए Cl2 AlCl3 जदि देला ताहले मेटा पोजीशन रे आसी कि H और Cl लॉस हो और मेटा पोजीशन रे लागि दिबो so this is the electrophilic substitution reaction in aromatic aldehyde and ketone
बाकी सब रिएक्शन भी तुम सेमती लिखि पारिबो यू कैन राइट ऑल दिस रिएक्शन हियर मेकानिक किसी दरकार नहीं जानि पारलो मेटा पोजीशन रे केमि रिएक्शन होची आर यू क्लियर हियर समस्त एठी क्लियर हे गलो सो मेटा पोजीशन रे रिएक्शन हेबो और CHO किबा COCH3 ग्रुप both are meta directing and deactivating group so this is about your electrophilic substitution reaction तापरे आउ कुते बाकी रहिची आउ दे वो छोटिया आउ दिटा मिससेलियस माने दिटा सेपरेट रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन दिटा बाकी रहिची गोटे होची फॉर्माल्डिहाइड विथ अमोनिया आउ दे होची एसीटोन विथ concentrated sulfuric acid ए दिटा रिएक्शन बाकी रहिची व्हाट आर दोस रिएक्शन दैट आर लेफ्ट गोटे है फॉर्माल्डिहाइड विथ अमोनिया माने फॉर्माल्डिहाइड रो अमोनिया सहित केमती रिएक्शन हबो हाउ दैट फॉर्माल्डिहाइड will react with your ammonia. This is the reaction that we are discussing or we will discuss right now. Formaldehyde ro ame ammonia सहित reaction discussion करिबा. This is a very easy reaction, just try to remember. Formaldehyde को हम केमते लिखि पारिबो जेमते कोइ सिंपली मन रखिबो. Whatever the way I am saying, you will memorize it in that way. तमे ताको सेही आकार ही मन रखिबो. मु जेमते कहूची तमे ताको सेमती आकार मन रखिबो. एटा हला हमर फॉर्मालिटी ताको हमको अमोनिया सहित रिएक्शन करैबार अछि. ई फॉर्मालिटी मु एमते लिखि पारिबी CH2 डबल बॉन्ड ओ लिखि पारिबी प्लस फॉर अमोनिया मते ऐड करैबार अछि. सेही हेला फॉर्मालिटी ये होला अमोनिया. केमती मन रखिबो देखो 6 मोल ऑफ फॉर्मालिटी यू विल टेक. तमे 6 टा मोल ऑफ फॉर्मालिटी नेबो. मन रखिया पे 3 दुगुणे 6 6 टा मोल ऑफ फॉर्मालिटी नेलो 6 दुगुणे 12 टा हाइड्रोजन एठी अछि. So I need 12 hydrogen here also. So for that you need 4 to multiply 4 here. केमती मन देगला बुझिलो 6 मोल ऑफ फॉर्मालिटी नेबो और 4 मोल ऑफ अमोनिया नेबो. केमती मन रखिबो 3 दुगुणे 6 6 दुगुणे 12 4 3 12 एठी बुझियला एठी समस्त लिखि देलो. एठी लिखि सारला परे what you will do you will what you will get, let's see first कोन पाउछो देखो तमे एठी जो 4 3 12 टा हाइड्रोजन अछि और यार जो 6 टा ऑक्सीजन बाहरला 6 ऑक्सीजन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड and 12 hydrogen of ammonia they will combine to give 6 mole of water. से माने 6 टा मोल रो वाटर बाहर करिबे को माने 12 hydrogen of ammonia and 6 oxygen of formaldehyde for 12 water बाहर गला बळी गला कोन CH2 केतेटा बळी गला CH2 बळी गला 6 टा. So 6 CH2 are left. How many nitrogen are left? 4 nitrogen are left. So this compound will form. केते सहज देखो CH2 6 टा बळीला CH2 होल 6 कर देलो नाइट्रोजन 4 टा बळला N4 हे गला. And this compound is called hexamethylene tetraamine. तमे ई कंपाउंड को hexamethylene tetraamine कहि पारिबो. You can say this compound is called here hexamethylene tetraamine. Hexamethylene tetraamine कहि पारिबो किबा यार कॉमन नेम अछि that is called urotropine. This compound is also called urotropine. ए कंपाउंड को urotropine कहा जाय किबा hexamethylene tetraamine कहा जाय. तुम यार स्ट्रक्चर भी लिखि पारिबो. केमती स्ट्रक्चर लिखिबो देखो जस्ट नाइट्रोजन को चारटा डायरेक्शन रे लिखि दबो. इफ यू आर आस्क्ड द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन दिस द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन चारटा नाइट्रोजन को चारटा डायरेक्शन रे रखि देलो तापर सब जे को दुईटा नाइट्रोजन मान को गोटे CH2 ग्रुप द्वारा ऐड कर दो. सो दिस इज CH2 ग्रुप गॉट इट. सो 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2 इन सब नाइट्रोजन को CH2 ग्रुप द्वारा ऐड कर देलो. ए सब CH2 भी नहीं चारटा CH2 भी ग्रुप हे गला आउ तीटा CH2 ग्रुप बढी सेमे केमती आले this nitrogen and this nitrogen this. So this is the complete structure of urotropine. अब मुझे कहबे urotropine रो यूज कोन. So use of urotropine or urotropine is used urotropine को आमे urinary infection रे यूज करू. urotropine is used in urinary infection. Remember urotropine is used as a medicine in urinary infection. Urinary infection time रे urotropine को medicine आकारे यूज करा जाए. theory कोन हबो formaldehyde reacts with ammonia to give urotropine which is used as a medicine in urinary infection.
यूरिनरी इन्फेक्शन रे ताकू मेडिसिन आकारे व्यवहार करा जाए बुझीला समस्त क्लियर सो फॉर्मालिटी यूनिट विथ एमोनिया बुझी पालो एटा गोटे स्पेशल कैटेगरी रो रिएक्शन तो सेति पई या को समस्ते ध्यान दे दिबो मु आउ थरे स्ट्रक्चर लिखि दोछि मते लागो देखा जाउ नै आई एम राइटिंग स्ट्रक्चर अगेन मोटे आउ थरे स्ट्रक्चर को लिखि दोछि नाइट्रोजन चार्ट लिखि देबो चार्टा डायरेक्शन रे नाइट्रोजन रखि देबो एबे प्रत्येक दुईटा नाइट्रोजन को गोटे गोटे CH2 ग्रुप द्वारा लगे देबो चार्टा CH2 हे गेला एबे आउ CH2 आउ CH2 so this is how 6 CH2 and 4 nitrogen are there got my point now we will discuss another special category of reaction I would have a special reaction ever discussion kariba that is your reaction of acetone in presence of concentrated sulfuric acid or acetone raw concentrated sulfuric acid presence रे कोन हबो that we are going to discuss right now एटा गोटे स्पेशल रिएक्शन मन रखो concentrated sulfuric acid presence रे acetone रू कोन बाहरिबो क्लियर first thing you will remember here 3 mole of acetone will be used एठी 3 मोल रो acetone यूज हेबो केतेटा मोल रो acetone यूज हेबो 3 मोल रो acetone यूज हेबो अब के मुटा को निंदी लेखि सिंपली लेखि तो पहला सिखिवा पई एक्चुअली एटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एगला गोटे एसिटोन मु जेंति लेखुची सेंति प्रथम लेखु देबो तापरे C डबल बॉन्ड O एंति एग्जाम करबा दरकार नै तुम सिखे देछि CH3 ठीक सेंति C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 देखो मु तीनटा मोल रो एसिटोन लिखि देली ई तीनटा मोल एसिटोन रो एक्चुअली साइक्लाइजेशन हेबो कोन हो एठी साइक्लाइजेशन हेबो साइक्लाइजेशन केमति आकर ए जो CH3 अछि CH3 रो H2 आ O माने ए H2 आ O माने हम केमति लिखि पारिबे CH H2 अछि तो CH3 माने कोन CH3 को हम कोन लिखि पारिबा we can write CH3 H CH H2 मु बाहर कर दूची माने एठू गुटे वाटर लॉस होबो ठीक सेंती एठू गुटे वाटर लॉस होबो ठीक सेंती एठू गुटे वाटर लॉस होबो तो टोटल कितेटा मोल वाटर लॉस होला लेट्स सी सो यू विल फाइंड इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid presence रे 83 मोल ऑफ वाटर विल बी लॉस एठी तीनोटी मोल रो वाटर लॉस होबो आ तीनोटी मोल रो वाटर लॉस होला पर बाहरला कोन देखो एठी भी कोन रहला CH2 एची H2O पड़े तो आउ CH रहला की सो CH तापरे एठी डबल बॉन्ड अछि डबल बॉन्ड रहिबो कार्बन अछि कार्बन रहिबो ए कार्बन ए CH3 लागि छी CH3 लागिबो एबे ए CH3 रु H2O पड़े छी माने आउ CH रहला की बॉन्ड CH H2O पड़े गला पुनी डबल बॉन्ड अछि डबल बॉन्ड C अछि C रहिबा CH3 लागि छी गोटे CH3 लागिला एबे पुनी कोन अछि देखो CH3 लागिला एठी एबे CH3 रु H2O पड़े छी तो CH अछि CH ये पुनी डबल बॉन्ड C CH और C भीतर सिंगल बॉन्ड अछि और ए C रे अगेन CH3 लागि सो देखो तो सिंपली C6H6 CH double bond C CH double bond C CH double bond C simple এটা benzene আছে কি নাই this is a benzene only nothing but এটা সবুলে completely ଗୋଟେ benzene है ଆଉ এই benzene ର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ कार्बन छाडी की ସବୁଥିରେ CH3 ଲାଗିଛି so this compound you will get plus 3H2 reaction complete ହେଇଗଲା ଏଟା ଖାଲି ତମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ करी तमे 3 मोल लिखि दबो ଆଉ benzene ଲଗାଇ ଦबो बेंजीन लगेला परे अल्टरनेट पोजीशन रे CH3 लगे दबो और ये रिएक्शन एमती आकार का बुझे देछि एमती आकार तैयारी हैला क्लियर तीनटा मोल एमती आकार रहितिबो एबे H2O लॉस है कि 3 मोल ऑफ H2 लॉस हबो बेंजीन देखि दबो तापरे अल्टरनेट पोजीशन रे CH3 लगे दबो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेसिटिलीन your mesitylene or you can say
1 2 3 4 5 6 माने 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन कहले भी चलिबो किमा मेसेटिलिन कहले भी चलिबो. So acetone reacts with concentrated sulfuric acid to give mesitylene. So with this we will end here this unit aldehyde and ketone. यार फिजिकल प्रॉपर्टीज को विशेष इंपोर्टेंस दो नहीं कारण समय कम अच्छी आम ताको आगे भी डिस्कशन करि परिबा. आम नेक्स्ट क्लास रे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट आम स्टार्ट करिबा. ओके, थैंक यू.